Hello and welcome once again in class 9 chemistry online classes, and in this video we will be discussing the remaining portion, or we will cover one or two more topics from chapter number 3 from NCERT book, that is atoms and molecules. In our previous video we have discussed up to this part here, and we were discussing law of constant proportions. So in the last we have discussed about ammonia, and the chemical formula of ammonia is NH3. So one atom of nitrogen is attached or bonded with three atoms of hydrogen. That is, the mass of nitrogen is 14 and that of one hydrogen is 1. So if three hydrogen are connected here or bonded with nitrogen, then the mass will be 3 and atomic mass of nitrogen is 14. So the ratio of nitrogen to hydrogen in ammonia is 14 is to 3. And whatever the procedure we will use to prepare this, the ratio will remain the same. And this led to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. अब इससे क्या मिला हमें? एक लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिला, और उसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी कह देते हैं. This law was stated by Proust as, जो ये लॉ है उसे प्राउस्ट ने कैसे स्टेट किया कि in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होती है, और वो प्रोपोर्शन हम किसका लेते हैं? उनके मास का प्रोपोर्शन लेते हैं. उनका जो मास का एक प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? एक डेफिनिट प्रोपोर्शन होगा. इट मींस वो कभी भी चेंज नहीं होता है एक ही कंपाउंड के. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था साइंटिस्ट के, कि अब उन्हें एक्सप्लेनेशन देना था इन लॉज का. तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. तो जो ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी नेचर ऑफ मैटर के बारे में. So Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. डाल्टन ने जो आइडिया लिया, उन्होंने भी सेम वही आइडिया लिया कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का. उस टाइम तक डाल्टन के जब समय था तब तक वो सिर्फ एक फिलोसफी थी. He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms. उन्होंने नेम एटम लिया जैसे जो ग्रीक ने एक्सप्लेन किया था, और ये बताया कि जो एटम्स होते हैं वो किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. So in one line you can say that atom is the smallest particle of matter. His theory was based on the laws of chemical combination. उनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी. हमने पहले ही दो लॉज पढ़ चुके हैं. एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, and then second one is law of definite proportion. So Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of, जो Dalton's atomic theory है उन्होंने एक explanation provide किया जो laws थे हमारे पास conservation of mass and law of definite proportion के बारे. So before going further, let us know some details about John Dalton. John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England. एक weaver family में, यानी जो बुनकर होते हैं उनकी फैमिली में पैदा हुए. He began his career He began his career as a teacher at the age of 12. यानी सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने टीचिंग करना शुरू कर दिया. 7 years later he became a school principal. और सिर्फ 7 साल बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल बने. In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics.
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। और 1793 में डाल्टन ने मैनचेस्टर के लिए निकले और वहां पे मैथमेटिक्स पढ़ाना था उन्हें, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाना था इन्हें कॉलेज। He spent most of his life there teaching and researching। और ज्यादातर अब जो मैनचेस्टर के अंदर ही उनका समय बीता था पढ़ाने में और रिसर्च करने में। In 1808 he presented his atomic theory which was a turning point in the study of matter। और 1808 में उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी जो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है अगर हमें मैटर की स्टडी को करना है। So, according to the Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atom। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी मैटर है चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या कोई भी मिक्सचर हो, वो एक स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम। ये जो बाकी पोस्टुलेट थे मींस द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। जो पोस्टुलेट थे उनकी थ्योरी के वो क्या थे? द फर्स्ट वन इज ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। कि जितना भी मैटर है वो एक बहुत छोटे पार्टिकल का बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन में। यानी एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। Second postulate is atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ये एटम्स वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। Atoms of a given element are identical in mass and chemical property। This is the third postulate कि जो एटम्स हैं गिवन एलिमेंट के वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। यानी जितनी भी एलिमेंट होगी उन सभी एलिमेंट में जितने एटम्स हैं भले वो कहीं पे हैं उन सबका मास और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगा एक ही एलिमेंट के एटम्स के अंदर। And atoms of different elements have different masses and chemical properties। और जो different element के atom है उन सबका मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। यानी अलग एलिमेंट है तो अलग एटम का मास होगा और अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स हमेशा एक स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड। जैसे सिंपल एग्जांपल इज ऑफ वाटर H2O अगर आप ले ले तो 2:1 के रेशो में वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये कंप्लीट होता है, पॉइंट्स में ये। द सिक्स्थ पोस्टुलेट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड्स ऑफ एटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है कंपाउंड। अमोनिया लिया था तो अमोनिया में हमेशा जो नाइट्रोजन है उसका 1 एटम रहेगा और हाइड्रोजन के 3 एटम्स होते हैं तो NH3 बनता है। और अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होंगे। इसके अलावा जैसे अगर कोई तीसरा एलिमेंट आएगा तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। So you will study in the next chapter that all atoms are made up of still small particle। लेकिन अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, वो भी किसी छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। So before going the or discussing the further topic, let us discuss these in-test question। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate that is Na2CO3। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, कितना लिया हमने उसे 5.3 ग्राम। रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। वो किससे रिएक्ट किया, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड से। 6 ग्राम में एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। एक केमिकल फॉर्मूला है इसका। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2.2 ग्राम CO2 बना, 0.9 ग्राम H2O बना यानी वाटर, एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA।
ये बना इससे। So that these observations are in agreement with law of conservation of mass। तो हमें ये बताना है कि जो ये ऑब्जर्वेशन है वो एग्रीमेंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। रिएक्शन दे दी इन्होंने, वर्ड इक्वेशन होती है ये कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन सबके नीचे इनका मास लिखिए। रिएक्टेंट है ये सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्टेंट है, इन दोनों के मास को ऐड कीजिए आपस में। सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मास को ऐड कीजिए और चेक कीजिए कि अगर दोनों तरफ इक्वल होगा तो यानी वो एग्रीमेंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, अदरवाइज वो नहीं होगा। Then the next question is hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to water। एक स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से 1:8 के रेशो में कंबाइन होता है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। अब कितना मास ऑक्सीजन का आपको चाहिए होगा कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है, तो 1:2 रेशो है कि अगर 1 ग्राम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है, तो 3 ग्राम किससे करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई and you will find the answer। So which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass। ये कौन सा पोस्टुलेट है जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का है और ये करता है कि वो आपको ये रिजल्ट बताता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। And which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion। और कौन सा जो पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या होगा। So this is all we have to discuss in this video। In our next video we will discuss the next topic, that is 3.2, that is what is an atom। So in this video we have discussed so far the remaining portion of law of conservation of mass और law of constant proportion, sorry। हमने इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है और उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। हमने इसमें पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, बी अटेंटिव, एंड इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा है इसके अंदर। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस and be ready for our next video and for next explanation what is an atom। Thank you everyone।